سوال ہے ووٹ کا، آج نیوز کی خصوصی الیکشن ٹرانسمیشن کا آغاز۔ راولپنڈی میں شیخ رشید کے حلقہ این 60 اور 62 کا جائزہ۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جیت کے لیے پر امید۔ حنیف عباسی نے رواں الیکشن شیخ رشید کا آخری الیکشن قرار دے دیا۔ عافیہ صدیقی حیات ہے، خدشہ تھا کہ کہیں ان کی شہادت تو نہیں ہو گئی۔ عافیہ صدیقی وطن واپسی کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس۔ عدالت امریکہ کو ہدایت نہیں دے سکتی، فوزیہ صدیقی کو امریکی سپریم کورٹ میں دعوے کا شکوہ۔ نگراں وزیر اعظم ناصر الملک کو الیکشن کے انتظامی امور پر بریفنگ۔ الیکشن کمیشن نے پرنٹنگ پریسوں کی سیکیورٹی کے لیے فوج مانگ لی۔ بیلٹ پیپرز کی چھپائی اور ترسیل فوج کی نگرانی میں ہوگی۔ عام انتخابات 25 جولائی کو ہی ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے صاف کہہ دیا، الیکشن ملتوی کرنے کی تمام درخواستیں مسترد۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی کراچی آمد، مزار قائد پر حاضری۔ میڈیا سے گفتگو میں لاہور کو پیرس بنانے کا دعویٰ کر دیا، اپنے حلقے میں جلسے سے خطاب بھی کریں گے۔ ڈیمز کے خلاف نہیں، لیکن کالا باغ کے چکر میں دیگر ڈیمز نہیں بن سکے۔ پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ کی وضاحت، دیگر ڈیمز کی تعمیر کا مطالبہ کر دیا۔ افتخار چودھری نے شہباز شریف کے ساتھ مل کر اربوں کا گھپلہ کیا، فواد چودھری کا الزام، گرفتاری کا مطالبہ، کہا ایڈن اسکینڈل میں تحریک انصاف متاثرین کے ساتھ ہے۔ کلثوم نواز کی میڈیکل رپورٹ اسلام آباد کے احتساب عدالت میں پیش۔ نواز شریف اور مریم نواز کو 3 دن کے لیے حاضری سے استثناء مل گیا۔ 7 دن کا استثناء مانگا تھا۔ خواجہ حارث کہتے ہیں کوشش ہے، دلائل کل تک مکمل کر لوں۔ میٹرو اورنج ٹرین چلتی۔ کراچی کے ہر گھر میں پانی ہوگا، ٹینکر مافیا سے نجات ملے گی۔ 6 ماہ میں شہر کچرے سے پاک ہوگا، شہری آرام دہ بسوں میں سفر کریں گے۔ میٹرو ٹرین اورنج ٹرین چلے گی۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے سنہرے کراچی کا خواب دکھا دیا۔ وعدہ کرتا ہوں 3 چیزیں کراچی کے لیے کریں گے، پبلک ٹرانسپورٹ، پانی، یہ جو آپ کے کوڑے کرکٹ کے جو ڈھیر پڑے ہیں غلاظت کے، 6 مہینے میں اس کو کرنا ہے۔ لاہور میں میٹرو بس بنی تو پہلے کراچی میں لگتی، لاہور میں اب اورنج لائن جو مکمل ہونے جا رہی ہے پہلے کراچی میں لگتی۔ اس شہر کا حق ہے، اس شہر کی دس از گیٹ وے ٹو پاکستان۔ کراچی میں تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ 2013 میں کراچی کو بجلی اور دہشت گردی کے چیلنجز کا سامنا تھا۔ 5 سالوں میں کراچی میں امن واپس آیا، بجلی بحران پر قابو پایا۔ ان 5 سالوں میں جو بجلی کا جو کرائسس ہے، اگر وہ 100% حل نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ 90% زیادہ حل ہو چکا ہے۔ آج کراچی شہر جو ہے الحمدللہ وہ دہشت گردی سے آلموسٹ ختم، پاک ہے بالکل۔ کراچی شہر کا امن واپس آیا۔ یہ 5 سال کی کاوش ہے، یہ کوئی دور کی کہانی نہیں ہے۔ شہباز شریف نے مخالفین پر ہلکی پھلکی تنقید بھی کی، کہا دھرنوں میں قوم کا قیمتی وقت ضائع ہوا، الزام تراشی اور دروغ گوئی سے کام نہیں لینا چاہیے، کارکردگی کی بنیاد پر بات کرنی چاہیے۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا کہنا ہے کہ لوگوں نے کالا باغ ڈیم بنانے کا شور مچایا، ملکی مفاد میں کالا باغ ڈیم نہیں بنائیں گے۔ بھاشا ڈیم بنانا ملکی مفاد میں ہے۔ بھاشا ڈیم سے سستی بجلی پیدا ہوگی اور پانی ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ انڈیا از اپر رائپیرین اینڈ وی آر لوور رائپیرین، اور لوور رائپیرین کے ہمیشہ ایشوز ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا، اور کالا باغ ڈیم ابھی پچھلے دنوں پھر بات شروع ہوئی تو میں نے پھر جواب دیا کہ کالا باغ ڈیم نو ڈاؤٹ از فیزیبل، کالا باغ ڈیم نو ڈاؤٹ از ویری اکنامیکل، بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف نیشنل یونٹی۔ اگر قومی وحدت جو ہے، قومی اتحاد جو ہے خدا نہ خواستہ اس کو ذوق پہنچتا ہے تو پھر کالا باغ ڈیم کے بجائے ہمیں وقت ضائع کرنا چاہیے۔ بھاشا ڈیم از یور امیڈیٹ رائٹ کے، جہاں پر 4000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی اور ملینز آف ایکر فیٹ پانی کا ذخیرہ بھاشا میں ہوگا۔ اور ابھی خبر دیں آپ کو اسلام آباد سے، جہاں چیف جسٹس ثاقب نثار اچانک پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل پہنچ گئے۔ اس موقع پر حکام نے انہیں بریفنگ بھی دی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہیلتھ کیئر سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے میٹنگ کی گئی۔ ملک میں صحت کا نظام اچھا جا رہا ہے، مستقبل میں مزید بہتری آئے گی۔ چیف جسٹس کو دیکھ کر خاتون ڈاکٹر نے بھی شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ شکایت کی کہ انہوں نے برطانیہ سے اسپیشلائزیشن کیا اور PMDC نے ان کی ڈگری کو
डिप्लोमा का दर्जा दे दिया। इन्होंने मुझे उसमें से निकाल दिया। इन्होंने 2017 में कुछ नए रूल्स बनाए हैं जिसमें हमारी टीचर्स जो हैं इसमें तबाह कर रहे हैं। सब में बहुत सारे और लोग हैं। जी बेटे, अगर मुझे भी थोड़ा सा साइड हो जाए, थोड़ा रास्ता छोड़ दो, थोड़ा रास्ता। और कसूर में नून लीग की अदलिया मुखालिफ रैली और नारेबाजी से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया गया। 29 जून को तौहीन अदालत केस का फैसला सुनाया जाएगा। कसूर में अदलिया मुखालिफ रैली और नारेबाजी से मुताल्लिक तौहीन अदालत केस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट में हुई। मुल्जिमान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वो तौहीन अदालत का सोच भी नहीं सकते, इन्हें माफ़ी दे दी जाए। अदालत ने इस्तफसार किया कि किसके कहने पर अदलिया मुखालिफ तकारीर और नारेबाजी की गई। फ्रीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत के फुल बेंच ने फैसला महफूज कर लिया, जो 29 जून को सुनाया जाएगा। उधर तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान कहते हैं इस बार सारे शेर भाग गए हैं, ये सर्कस के शेर हैं, असली नहीं है। बगैर पैसे एक बूंद पानी न मिलने पर कराची में वाटर वॉर का खदशा है। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बाबर अवान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमारे खिलाफ तरह तरह के मुकदमात कायम किए। उन्होंने वोटर्स को ऐसी इज्जत दी कि कुलसूम नवाज ने हलफ ही नहीं उठाया। ये सर्कस के शेर हैं, असली नहीं। ये कहते थे हम शेर हैं, इस वक्त छोटा शेर भागा हुआ है, समधी शेर भागा हुआ है, बड़ा शेर भागा हुआ है, बुढ़ा शेर भी भागा हुआ है, सारे शेर भागे हुए हैं। ये सर्कस के शेर थे। कराची समंदर के किनारे पे है और उसको प्यासों को कतरा भी नहीं मिलता पैसे दिए बगैर। कराची में जो पानी के हालात हैं, अल्लाह ना करे वहाँ वाटर वॉर शुरू हो जाए। हमने इनके साथ मुकाबला किया, खड़े होके हमने लड़ाइयाँ लड़ी, हमने जंगें की हैं इनके साथ। क्या क्या मुकदमे ये नहीं ढूंढते रहे, उसके खिलाफ वो जैली पेपर बनाते रहे। वोटर को इन्होंने इज्जत ऐसी दी कि लौरियो जिन्होंने वोट दिता सी मैडम कलसूम नवाज नू, तुहाडे वोट नू इतनी इज्जत मिली है कि उसने हलफ ही नहीं चुकिया। पूरे पंजाब के SHO और तहसीलदार तब्दील करो। नवाज शरीफ एंड कंपनी जैली शेरों के खिलाफ मुकदमात, उनका फैसला होना चाहिए। साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना है कि कालाबाग डैम के चक्कर में दूसरे डैम ना बनाए जा सके। कालाबाग डैम के सिवा तमाम डैम बनाए जा सकते हैं। सखर की तहसील सालेपट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बताया जाए भाषा डैम क्यों ना बन सका। अगर में गए तो थोड़ा वेंटिलेटर के, क्योंकि वेंटिलेटर वहाँ नहीं है, वहाँ मसला है, वहाँ पे डॉक्टर स्टाफ का बड़ा प्रॉब्लम है। नए डॉक्टर सभी आए हैं, तो मैं चीफ जस्टिस साहब से उस दिन कहा भी था कि जहाँ ये प्रोजेक्ट देखते हो वहाँ पे NICVD भी है, SIUT भी है, उनको भी देखना चाहिए। हम भी वाश फेयर के बनना चाहिए, एक नहीं 20 डैम बनने चाहिए। हमारे पास भाषा है, बूंदी है, स्कर्दू है, बहुत सी डैम की पेड़ है। कालाबाग डैम की जिसकी बात करें कि उसके चक्कर में ही तो हमने तबाही कर दी है, उसके चक्कर में कि दूसरे डैम नहीं बना सकते, उस साजिशों में हम लग गए हैं। उधर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि आम इंतखाबात में तमाम जमातों का मुकाबला मुस्लिम लीग नून से है, जिनके ज्यादातर उम्मीदवार अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। चौधरी निसार से मुतालिक फैसला क़यादत ने किया। आम इंतखाबात रुकवाने वाले पर आर्टिकल 6 लगेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 95 से इमरान खान को इंतखाबात लड़ने के लिए अहल करार दे दिया। अलीम खान के कागजात मंजूर होने के खिलाफ दायर तमाम अपीलें खारिज कर दी गईं। लाहौर हाई कोर्ट में कायम इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपीलों पर आज चौथे रोज भी समाअत जारी है। NA 95 मियांवाली से इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दायर अपील पर समाअत हुई। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर के फैसले को कलअदम करार देते हुए इमरान खान को NA 95 मियांवाली से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। इमरान खान के वकील बाबर अवान ने दलाइल देते हुए कहा कि टेहरियान के हवाले से जो दस्तावेजात रिटर्निंग ऑफिसर को फराहम की गयी वो मुसद्दिका नहीं। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अलीम खान के कागजात की मंजूरी के खिलाफ दायर तमाम अपीलें भी खारिज कर दी। साबिक वफाकी वजीर राना फारूक सईद के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दायर अपील भी मुस्तरद कर दी गई। PP 144 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अजीजुर रहमान चंद और PP 109 से PTI के उम्मीदवार नदीम आफ्ताब सिंधु के कागजात पर एतराजात के हवाले से अपीलेट ट्रिब्यूनल ने फैसले महफूज कर लिए। और इस्लामाबाद के 3 हलकों में रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ शाहिद खाकान अब्बासी, मेहताब अब्बासी और आयशा गुललई की दरख्वास्तों की समाअत हुई। जस्टिस मोहम्मद अख्तर कियानी ने कहा कि उम्मीदवारों को सवाल ही समझ में नहीं आए। किसी ने लिखा दूसरी शादी नहीं की। साबिक वज़ीर आज़म ने लिखा कि टैक्स देता हूँ, मेरा वक़ार बरकरार है।
हलफनामे के पेचो खम, सवाल चना जवाब गंदुम। उम्मीदवारों को अंग्रेजी में हलफनामा समझ नहीं आया। उम्मीदवारों के जवाब इलेक्शन कमीशन की समझ न आए। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की वजूहात सामने आ गईं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि बैंक अकाउंट और शिक एन पर बड़ी तादाद में उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। लोगों को सवाल ही समझ में नहीं आए। 10वीं जमात में सवाल समझ नहीं आता था तो मुस्तरद हो जाता था। सवाल के जवाब में किसी ने लिखा दूसरी शादी नहीं की। साबिक वजीर आजम ने तो ये लिख दिया कि टैक्स देता हूँ, मेरा वकार बरकरार रहा। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने कहा सवालात से मुताल्लिक उम्मीदवारों को बुलाकर पूछ लिया जाए कि उन्होंने क्या समझा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और आरओ को नोटिस जारी करते हुए समाअत 1 रोज के लिए मुलतवी कर दी। और अभी बात करते हैं शहर इकबाल सियालकोट की, जहां कौमी असम्बली की 5 और सूबाई की 11 नशस्तों के लिए सियासी दंगल शुरू हो गया है। सियासी जमातों ने अपने अपने पहलवान सियासी अखाड़े में उतार दिए हैं जो अपने मद्दे मुकाबिल को चित करने को तैयार है। ख्वाजा रेहान नसीम मजीद बताएंगे। 23 लाख से जायद वोटर सियालकोट से 16 उम्मीदवारों को कौमी और सूबाई असम्बली के परवाने थमाएंगे। शहर के अहम हल्का NA 73 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ख्वाजा आसिफ और PTI के उस्मान डार के दरमियान बड़ा टाकरा होगा। अब 25 जुलाई को फैसला जो है ये खल्के खुदा की अदालत ने फैसला देना है कि हक हुक्मरानी जो है वो किसको जाएगी। सियालकोट के गयूर अवाम गुज़श्ता इंतखाबात में जो तरीक साज धांधली हुई थी सियालकोट में, जो इनका मैंडेट चुराया गया था, उसका हिसाब लेंगे। तहसील सियालकोट के दही इलाकों पर मुश्तमिल NA 72 में PTI की उम्मीदवार साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी अरमगान सुबहानी मद्दे मुकाबिल हैं। हर तरह की अकबरा परवरी के तहत दीमक बन के चाटते रहे उन अफराद से इस मुल्क को निजात दिलानी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2018 का इलेक्शन पाकिस्तान की तमीर और तरक्की का एक नया बाब लेकर आएगा जो मुस्लिम लीग के साथ मंजूर होगा। सियालकोट के दोनों अहम हलकों में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने के लिए पीपल्स पार्टी और MMA के उम्मीदवार भी मैदान में हैं। जीत किसका मुकद्दर बनती है, इसका फैसला